एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਲ, अंजलि मित्तल, राजेश मित्तल, रिचा मित्तल, रिम्पी गर्ग, मुनीश गर्ग, एडवोकेट ईशान मित्तल, शिमुना मित्तल, शिवम मित्तल, रोजनी मित्तल, रिहान मित्तल, शिवांगी गर्ग, आकाश गर्ग ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਖਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਵ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਨਕ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ बेटी रिम्पी ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ बेटी रिम्पी अपने सहुरे घर श्री मुनीश गर्ग जी हुणां नाल सुखी ਵਿਆਹੁਤਾ जीवन बतीत कर रही है ਅਤੇ आप जी ਦੇ दोनों बेटे ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਲ, शिमुना मित्तल, शिवम मित्तल, रोजनी मित्तल, रिहान मित्तल, शिवांगी गर्ग ਅਤੇ आकाश गर्ग ਨਾਲ महक रही है। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਪੀਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਫਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਪਯਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर दसता कि है इंसान है आदमी तेरे हाथ के विच है कर्मन नैवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना अपने हाथ के विच है, कर्म तो बिना से कुछ नहीं कर सकते।
ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਅਪਯਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? तो अपने ग्रंथ अपने शास्त्र इसके बारे लिखते हैं कि कर्म एक परमात्मा के नज़दीक जाने वाला है। गुरबाणी के अंदर दो तरह के कर्म का फरमान आया, कह नेड़े कह दूर। एक परमात्मा के ईश्वर के नेड़े लेके जाता है कर्म, और एक सानू परमात्मा तो ईश्वर तो दूर कर देता है कर्म। कर्म असी आपकी मर्जी के नाल कर सकते हाँ, पर उसका जिहड़ा फल है कर्म का वो सानू अपनी मर्जी के नाल नहीं मिल सकता। सानू साडी मर्जी के नाल कर्म का फल नहीं मिल सकता। कर्म असी मर्जी के नाल कर लेने। राजा ने सारा कुछ समझाया, समझाने तो बाद समा बीत गया, राजा का देहांत हो गया, और उस बेटे ने सारा क्रियाक्रम जो विधि विधान के मुताबिक किया, और जिन्ने दिन दसे सी ठीक जाके उन्ने दिनों बाद देखा महल के बैक साइड से जी नाली वग रही थी, उस नाली के अंदर कीड़ा डुबकियां लगा रहा सुनहरी रंग का। पहचान लिया उस कीड़े को कि ये मेरे पिताश्री है पिछले जन्म के। जिस वेले सोटी लैके उसको मारन लगे आओ, डुबकी मार के दूसरी जगह पर चला गया कीड़ा। फिर उस जगह से जो बाहर किया उतों डुबकी मारी होर जगह पर जाके निकल गया। यानी जिस भी जगह पर वो कीड़ा नजर आता है ना, उस जगह पर राजकुमार उसको मारन वास्ते सोटी के नाल प्रहार करता है, वार करता है, पर वो कीड़ा डुबकी मार के दूसरी जगह पर चला जाता है। जब कुछ समा बीत गया तो उस कीड़े ने कहा कि राजन ऐ राजकुमार तू भाई मैनू क्यों मारना चाहना है? मैं तेरा की गवाया? तू मेरी जान के पीछे की पे? तू अपना काम कर, राजमहलों में जाके सुख भोग। तो राजकुमार कहने लग्या कीड़े विचार करो, तुसी साधारण कीड़े नहीं हो, तू कोई साधारण कीड़ा नहीं है। तू इस देश का सम्राट सी, तू इस देश का राजा सी, तू मेरा बाप सी, तू मेरा पिता सी, तू मैनू जन्म दिता है, और तू मैनू कह मरण तो पहले आज्ञा दी सी कि जिस वेले इस जगह पे पहुंचेगा मैं ऐस योनि दे विच होवांगा, तू मैनू मार देवी और मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं तो थोनू जोनी तो छुड़ाउण वास्ते आया हाँ, तुसी इस गंदगी के विचों निकल के चले जाओ। वो कहने लगा बेटा मैं जिस भी जगह पे हाँ, मैं जिस भी हालत के विच हाँ, मैं जिस भी योन के विच हाँ ना, मैं इस शरीर को छड्डना नहीं चाहता। शरीर को आपां आदमी का की, कोई पशु पंछी जीव जंतु वो भी साडे उसनों भी शरीर के नाल ममता होंगी, शरीर के नाल मोह होता है, वो शरीर को छड्डना नहीं चाहता। तो अज उस जगह पे कबूतर किसनू कह रहा है? गरुड़ जी को कह रहा है कि महाराज यमराज अंदर जाते हुए मैनू देख के गए हैं, और यमराज जी के देखने का मतलब मेरी मौत है। महाराज मैं जाना नहीं चाहता दुनिया के अंदर। कबूतर को उदास देख के गरुड़ जी कहने लगे चलो मैं इतनी दूर थोनू छड्ड के आवांगा जिस जगह पे यमराज की हवा भी ना पहुंच सकती होगी। उस जगह तो कबूतर के बच्चे को लिया, कबूतर के बच्चे को लैके समुद्र तो पार चले गए गरुड़ जी। समुद्रों पार जाके एक पहाड़ की गुफा के अंदर बंद कर दिता और आप वापस आ गए। देवतावां की सभा, देवतावां की मीटिंग खत्म हुई और सारे देवता अपने अपने स्थान को जान लगे, प्रस्थान करके अपने अपने लोक को। यमराज जी महाराज उस जगह पे खड़े हो गए और गरुड़ जी महाराज को देख के गरुड़ जी का धन्यवाद किया, थैंक्स किया गरुड़ जी का। गरुड़ जी कहने लगे कि यमराज तुसी मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हो? थोनू तो मेरे ते गुस्से होना चाहिए सी, नाराज होना चाहिए सी, क्योंकि तुसी जिस जीव को लैके जाना सी उसको मैं बहुत दूर छड्ड के आ गया, उस तक तुसी की थोड़ी हवा भी नहीं पहुंच सकती और तुसी मैनू धन्यवाद दे रहे हो। तो यमराज कहने लगे गरुड़ मैं इसे चीज़ का ही तेनू धन्यवाद दे रहा। जिस वेले पंछी को मैं दरवाजे से बैठे हुए देखिया, गेट के उत्ते बैठे हुए देखिया, तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जन्म मौत का समा वो तो सिर के उत्ते आ चुके हैं। ये मौत के विच तां हजे कुछ मिनट बाकी है,
और जिहड़ी जगह ते दी मौत लिखी है ना, ये खुद उड़ के उस जगह ते जा नहीं सकता गा। विधाता ने लिखन वेले पता नहीं किस जगह ते गलती कर दी। जिस तुसी पहाड़ की गुफा दे विच उस नूं छड्ड के आए हो, कर्म के अनुसार उस पहाड़ की गुफा दे विच बिल्ली पहला ही बैठी हुई उसका इंतजार कर रही सी, तुसी उस नूं बिल्कुल सही जगह ते छड्ड आए हो, उस जीव की मौत हो चुकी है। तो कहने तो भाव कि जन्म के समय ही मृत्यु का समा, स्थान और कारण, ये तीनों चीज़ां निश्चित हो जाती हैं। गुरबाणी के अंदर एक शब्द आता है कि मरण लिखाए मंडल में आए। सब तो पहले की लिखा गया? मरण लिखा गया। इस शरीर को जिस वेले हजे माता के गर्भ के विच वास मिल रहा है, माता के गर्भ के विचों बाहर नहीं आया जीव, माता के गर्भ के विच भी कदों प्रवेश किया इसने? मरण लिखाए। जदों उसका मरण लिखा गया, फिर इस भूमंडल के उत्ते, इस पृथ्वी के उत्ते, इस माता के गर्भ के अंदर ये जीव फिर प्रवेश करता है जदों उसका पहला मरण लिखा जाता है। और इस जगह पे जीव आता कादे वास्ते है? अपने ग्रंथ लिखते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। असी अपनी मौत को सुधारन वास्ते आने हाँ। मौत को सुधारन का मतलब कोई बहुत सारा रुपया धन दौलत इकट्ठी करके जाना, ये कोई मौत को सुधारन का नहीं है। तो मौत को सुधारन का मतलब है कि बहुर ना मरना होए, दोबारा मरण ना हो, उस परमात्मा को प्राप्त कर जाना। और इस तरह का कर्म करना कि जिहदे नाल साडा दो जगह ते हिसाब किताब होंदा कर्मां दा। विचार करिए तो दो जगह ते साडे कर्मां दा, चंगे माड़ियां दा हिसाब किताब होंदा है। एक तो होंदा है परलोक दे अंदर, जिसनों आपां कहते हैं चित्रगुप्त, धर्मराज। चित्र, चित्र का मतलब जो सामने प्रत्यक्ष सानू दिखाई दे रहे, जो सानू नजर आ रहे हैं, और गुप्त जिहड़ा सानू दिखाई नहीं दिंदा। दोनों तरह के असी कर्म करते हाँ। एक जिहड़े शरेआम असी कर्म करते हैं जिहड़े सारे लोगों को दिसते हैं, और दूसरे असी कर्म करते हैं लुक छिप के। वो दोनों का हिसाब किताब रखने वाले, दोनों का जिन्हों ज्ञान है, उन्हों का नाम है चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त जी के कोल धर्मराज जी की सभा के विच एक साडे चंगे माड़े कर्मां का हिसाब होता है, और एक चंगे माड़े कर्मां का हिसाब होता है साडा समाज के अंदर। समाज भी साडे कर्मां का लेखा जोखा करता है कि ये जान वाला जिहड़ा आदमी है, इसके कर्म किस तरह के सीगे, और उहदे भाई चंगे माड़े कर्म देखने होण तां समाज दे विच जिस वेले उसकी अर्थी जाती है, उसकी शव यात्रा निकलती है, उस वेले देखा जाता है। और जां जिस वेले उसकी प्रार्थना सभा होंदी है, उस वेले देखा जाता है कि इस आदमी के कितने की चंगे कर्मां के सदका लोग इस दे नाल जुड़े हुए। ये साडा दो जगह के कर्मां का, चंगे और माड़ियां का हिसाब किताब होता है। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जो भी दुनिया के अंदर आया जाना सब ना माने है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन से बैठ के जाते हैं। सिंहासन से बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप जान वाले की अर्थी को बिठा के ले जाने, चौंकड़ी मार के लेके जाने, या कुर्सी से बिठा के ले जाने। और जंजीर के नाल बन्नण का मतलब ये नहीं होता कि उसके रस्सियां की जगह से संगली का नाल उस अर्थी को बन्निया जाता है। जिस आदमी को आप जिउंदे जी भी सत्कारते हाँ, वो आदमी सिंहासन से बैठा गया है। और जिन्हों ने कौम वास्ते, जिन्हों ने देश वास्ते, जिन्हों ने समाज वास्ते, जिन्हों ने धर्म वास्ते, जिन्हों ने दुनिया वास्ते कोई चंगा कर्म किया है, जिन्हों की अज साडे धर्म स्थानों के विच पूजा होंदी है, मंदिरों के विच, गुरुद्वारों के विच, स्मारकों के विच, जिन्हों दी तस्वीरां लगियां हुई हैं, जिन्हों के सामने खड़े होकर असी फुलों के हार अर्पण करते हैं, उन्होंने चरणों के विच फुल चढ़ाने हाँ, और उन्होंने अपना आदर्श मानते हाँ। असी किसी ने भगवान श्री राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, बाबा नानक देव जी को, गुरु गोबिंद सिंह जी को, भगत सिंह जी को, महाराणा प्रताप को, लक्ष्मी बाई को किसी ने नहीं देखा, पर असी अज भी उन्होंने याद करते हाँ। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्हें समाज, देश, कौम, धर्म
इन्हां वास्ते चंगा कर्म कीता है और अज भी सिंघासन से बैठ के जा रहे हैं। वो सिंघासन के उत्ते विराजमान है। जदों तक ये दुनिया रहेगी उदों तक वो आसन से ही बैठे रहेंगे। उन्हां दा आसन, उन्हां दा सन्मान, उन्हां दी इज्जत किते डगमगाएगी नहीं। रावण वो जंजीर के नाल जकड़िया होया गया। साडे चों रावण ने किसे साडे दे विचों, साडे सबनावां दे विचों, ऐस समाज दे विचों रावण ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़िया सी। कंस ने किसी को दुख नहीं दिता। दुर्योधन ने अपने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ नहीं मारिया, किसी का उसने कुछ खोया नहीं। कुंभकर्ण ने साडा पर्सनल कोई नुकसान नहीं किया, पर उसने अपने समय के मुताबिक अपने अहदे का, अपनी हैसियत का, अपने राज का, अपनी ताकत का की किया दुरुपयोग किया। माड़े आदमियों का उसने सहायक बन के उन्होंने सहायता की। अज भी आप रावण नूं, कुंभकर्ण नूं, मेघनाथ नूं, इन्हों बुरी नज़र के नाल देखते हाँ। बुराई की रस्सी के नालों बंधे हुए गए हैं और जदों तक दुनिया रहेगी उदों तक रावण का पुतला साड़िया जाएगा, उदों तक रावण को बुरा कहा जाएगा, उदों तक उसनों पूजा नहीं जाएगा, उसका सन्मान नहीं होगा, उसमें एक माड़ी निगाह के नाल देखा जाएगा। वह बुराई की रस्सियां के नाल बन्ने हुए गए हैं और दूसरे सिंघासन से बैठ के गए हैं। असी सिंघासन से बैठ के जाना चाहते हाँ जां असी बुराई की रस्सियां के नाल जकड़े हुए जाना चाहते हाँ। ये निश्चय करना, निर्णय करना साडा फर्ज है और ये निर्णय असी खुद करना है कि असी किस तरह का सन्मान चाहते हाँ, असी किस तरह के नाल अपनी मृत्यु चाहते हाँ। क्योंकि जाना अपने समय के अनुसार है सबनावां ने और अपने समय के अनुसार इस जगह तो जाना है। क्योंकि सानू जो कुछ इस जगह पर मिलता है, सानू आयु मिलती है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, भैन भाई मिलते हैं, ये कर्म की वजह के नाल मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर भी आता है अवश्य वे भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम चंगा ते माड़ा कर्म, ये सानू इस जगह से भोगना पैंदा है। गुरबाणी के अंदर आता है कि पूर्व लिखे का लिखिया पाया। जो कुछ असी पूर्व जन्म के अंदर किया है, चंगा किया है, बुरा किया है, वो कर्म इस जगह से साडे नाल जुड़ के चलते हैं। कोई कर्म साडा माँ बाप बन के आता है, कोई कर्म साडा भैन भाई बन के आता है, कोई कर्म साडा रिश्तेदार बन के आता है, कोई कर्म साडा मित्र बन के आता है, कोई कर्म साडा संतान बेटा बन के आता है, कोई कर्म साडी बेटी बन के आता है, कोई कर्म साडी नूंह बन के आता है और कोई कर्म साडा दामाद बन के आता है, कोई कर्म साडा बेटा बन के आता है। किसी तो सानू दुख मिलता है और किसी तो सानू सुख मिलता है। जे ये साडियां सारियां चीज़ां चंगियां है तो समझो कि साडे सारे पिछले जन्म के चंगे कर्म है। चंगे कर्म है साडे पिछले जन्म के, माँ बाप चंगे मिलणगे, परिवार चंगा मिलेगा जिस दे विच साडा जन्म होएगा। होर चंगे कर्म है, भैन भाई चंगे मिलणगे। परमात्मा ने वो चंगे बुरे कर्मां नूं साडे भैन भाई बना के इस जगह ते भेजिया है। होर साडा चंगा कर्म है, सानू संतान चंगी मिलेगी। होर साडा चंगा कर्म है, सानू मित्र दोस्त चंगे मिलणगे। होर भी साडा चंगा कर्म है तो सानू समाज दे विच इज्जत मान सत्कार ये भी चंगा मिलेगा। असी कर्म जिस तरह का करना है वो साडे अपने हाथ दे विच है। जिवें असी एक घर दे विचों दो बच्चों को पैसे दे के बाहर भेज दिंदे हाँ कि बेटा आपकी मर्जी के नाल तुसीं इस पैसे को खर्च कर सकते हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शाम को एक बच्चा आता है, माँ बाप वास्ते मिठाई फ्रूट लेके आ जाता है, माँ बाप गले के नाल लाते हैं, उसको प्यार करते हैं, गोदी के विच बिठाते हैं। दूसरा बेटा जुआ खेड के दारू पी के आ जाता है, माँ बाप उसको फटकार देंगे हैं। कर्म है ना दोनों का। पैसे माँ बाप ने दिते सी दोनों, पर दोनों ने वरते अपनी मर्जी के नाल। एक ने इस तरह की जगह से वरते कि माँ बाप ने गोदी के विच बिठा लिया, दूजे ने इस तरह की जगह से वरतों कर दी, पैसों की माँ बाप ने घरों बाहर कढ़ दिता। वो सरमाया सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दिता है परमात्मा ने, और वो सरमाया किहड़ा है, सानू सरमाया जिहड़ा दिता है परमात्मा ने, वो दिता है स्वांसा की पूंजी, स्वांसा का धन। वो जिहड़ा स्वांसा का धन है ना, वो असी चाहे चंगे पासे ला दीए तो भाई चाहे माड़े पासे ला दीए, उसको वरतों असी अपनी मर्जी के नाल कर सकते हैं उसकी, पर उसका फल वो परमात्मा के अधीन है। तो बहुत कुछ ना कहते हुए कि जीव अपने कर्मां दे नाल बन्या होया इस जगह पर आता है,
ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 4 ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰੋ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਮੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਜੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 4 ਆਦਮੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਜੋ ਘਾਟਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਗਰਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਜੀ ਹੈ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਰਿੰਪੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਂ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਪ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਬਾਪ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਅੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਸਭ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਢਿੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਜਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ।
और खत्री सभा मोगा अध्यक्ष विजय धीर जी वालों शोक प्रस्ताव इस जगह पर आया है। श्री विजय कुमार जी सिंगला प्रधान एवं मैंबर मोगा धर्मशाला चामुंडा देवी माता चिंतपूर्णी मंदिर रामगंज लायंस क्लब मोगा। पायल गर्ग MC है जो इन्होंने इलाके साढ़े इलाके के परमात्मा उन्होंने होर भी ज़्यादा के बदन के वास्ते हौसला देन तरक्की देन। वो भी अपना शोक प्रस्ताव इस जगह पर लेके आई है। अग्रवाल समाज सभा रजिस्टर मोगा वालों शोक मता आया है। नवदीप संघा जी आम आदमी पार्टी वालों अपना शोक मता लैके इस जगह पर आए हैं। और इन्होंने नाल नाल श्री ज्वाला दुर्गा भजन मंडली रजिस्टर्ड मोगा संस्थापक मोगा धाम चिंतपूर्णी हिमाचल प्रदेश इन्हों वालों शोक मता आया है। अमर शहीद भगत सिंह ITI कच्चा दुसांझ रोड मोगा वालों नरेंद्रपाल सिंह जी वालों शोक मता इस जगह पर पहुंचा है। अग्रवाल सभा मोगा एवं युवा अग्रवाल सभा मोगा इन्हों वालों शोक मता पहुंचा है। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग पंडित कृष्ण जी और साढ़े मंदिर के बहुत ही विद्वान योग्य पंडित जी अरुण शुक्ला जी जिन्हों का मेरे तो भी ज़्यादा पुराना संबंध सी वो भी इस जगह पर अपना शोक मता लेके और प्रभु चरणों के अंदर प्रार्थना करने वास्ते हाजिर हुए हैं। जो संस्थावां शोक मता लेके आई हैं उन्होंने भी धन्यवाद। और जो सज्जन इस जगह पर आप खुद चल के आए हैं बड़ा कीमती समा कढ़ के मित्तल परिवार वालों उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जेकर किसी का कोई शोक मता इस जगह पर रह गया हो बोलिया ना गया हो या पहुँचा ना हो तो कृपा करके क्षमा करना। उन्होंने कुछ माफ़ी चाहांगे और रस्म पगड़ी होएगी। परिवार वालों प्रार्थना की आए हुए मित्र दोस्त भोजन करके जान खाना खा के जिन्ना भी इच्छा है प्रसाद समझ के इस प्रसाद को ग्रहण करन। और आने के लिए सब नावां दा इस प्रार्थना सभा के शामिल होने के लिए मित्तल परिवार वालों श्री राजेश कुमार जी संजय जी और मनीष जी पवन जी और विजय जी के परिवार वालों बहुत बहुत उन्होंने सब नावां दा धन्यवाद है कि तुसीं आके दुख को वंडाया है। एक एक कदम थोड़ा सिर मत्थे है। और फिर दोबारा प्रार्थना है कि भोजन करे बिना कोई भी ना जाए। गरुड़ पुराण जी के रुमाला अर्पण किया जाएगा। इस तो बाद शांति पाठ होएगा नाल और रस्म पगड़ी होगी। पगड़ी वास्ते जो भी मित्र रिश्तेदार आए हैं वो जरा अगे आ जाएंगे। संजय जी राजेश जी रस्म अपने रुमाला अर्पण करने वास्ते अगे आएंगे। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू। होर सुनावां किनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां
ਚਰਨਾਂ ਦੇ